today we are going to solve this m plus n into m minus n. Okay, so how to solve this? There are two ways to solve this. Okay, the first one is, what we have to do is we have to consider this in a formula. The formula is similar to a plus b into a minus b. Okay, the formula is similar to, you have to check the formula which is matching. इससे सबसे जो नज़दीकी मैचिंग वाला फॉर्मूला होता है, you have to see this. Okay, तो ये फॉर्मूला होता है a plus b into a minus b. Okay, फॉर्मूला इज ओके इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं a इज रिटन ऑन द प्लेस ऑफ m, यानी कि m की जगह पर a है और n की जगह पर b है. ओके, यहाँ पर m की जगह पर a है, n की जगह पर b है. तो m इज इक्वल टू a, n इज इक्वल टू b, m इज इक्वल टू a कॉमा n इज इक्वल टू b. ओके, फॉर्मूला ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंपली कॉपिंग द फॉर्मूला. a की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि m और a दोनों इक्वल है तो हम m भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं. a की जगह हम लिख रहे हैं m स्क्वायर माइनस, हम यहाँ b की जगह हम n लिख सकते हैं, n स्क्वायर. This is it. Okay, this is the first method. This is a simple first method. There are two methods to solve this. Okay, second method I am showing. The given question is m plus n into m minus n. Okay, how to solve this? It is very simple. We are making our own formula to solve this. Okay, first we have to write given, that is m plus n into m minus n. Okay, now what you have to do is you have to multiply this into this. This bracket resembles multiplication. ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. आपको m प्लस n को m माइनस n से मल्टीप्लाई करना है. ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस m प्लस n बाय m माइनस n, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हाउ टू मल्टीप्लाई? ओके, m प्लस n m माइनस n. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज फ्रॉम दिस टर्म दिस m यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म, फ्रॉम दिस n यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म. ओके, यहाँ पर देखिए ये m है, ये m को ये पूरा टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये n को आपको ये पूरा टर्म से मल्टीप्लाई करना है. ओके, गॉट इट? इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, ये m हम जैसे कि वैसा लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग एज इट इज. नाउ m माइनस n. ओके, ये हमने m लिख लिया एंड दिस ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज प्लस n. ओके, एज इट इज प्लस n, देन अगेन वी आर राइटिंग दिस ब्रैकेट. आई होप यू गॉट इट. यहाँ पर ये दिस इज द मेन स्टेप. अगर आप ये स्टेप समझ गए, यू कैन इजीली डू द एंटायर प्रॉब्लम. ओके, दिस m will be multiplied by this entire term and this n will be multiplied by this entire term. Okay, ये m ये पूरा टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये n पूरा टर्म से मल्टीप्लाई होगा. सो व्हाट वी आर डूइंग इज ये m हम एज इट इज लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग एज इट इज, एंड दिस m माइनस n वी आर राइटिंग हियर. ओके, we are writing m minus n as it is here. Okay, ये n हम जैसे कि वैसा लिख रहे हैं and we are just writing m minus n as it is. Okay, now what we have to do is we have to simply multiply it. Okay, how to multiply means this m will be multiplied by this m as well as n. ये हमारा m से भी multiply होगा and n से भी multiply होगा. Okay, in the same way n will be multiplied by m also, n will be multiplied by n also. Okay, m into m will be m square. Why m into m will be m square? Simple, because like phi into phi will be phi square. In the same way m into m will be m square, a into a will be a square. So in the same way m into m will be m square. Okay, now m into n will be mn. Okay, m into n will be mn. Like what we are doing is we are writing m into n. Okay, m n. Okay, why we are writing minus here? Why we are writing minus here means the sign is minus here. Okay, for example, let me give you an example. Plus into minus, minus into plus, plus into plus, minus into minus. Okay, plus into minus will be minus, minus into plus will be minus, plus into plus will be plus, minus into minus will be plus. इसको याद रखने के लिए सिंपल प्रोसेस ये है कि what you have to remember is plus and minus. Here both signs are opposite. मतलब यहाँ पे plus and minus both are opposite signs. तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, हियर इट इज माइनस एंड हियर इट इज प्लस. बोथ साइंस आर अपोजिट, सो आंसर विल बी माइनस. यहाँ पर आप देख सकते हो बोथ साइंस आर सेम, देन आंसर विल बी प्लस. यहाँ पर भी आप देख सकते हो माइनस एंड माइनस बोथ साइंस आर सेम, सो द आंसर इज प्लस. ओके, आई होप यू गॉट इट. सो जब आप साइंस समझ चुके हो, अगर आपको साइंस समझ में आ चुकी है, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, सो व्हाट यू कैन डू इज हियर माइनस. अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा प्लस से पहले, m से पहले, तो प्लस होता है. ओके, सो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस mn. ओके, n into m
n into m will be nm. Okay, here plus is there, plus into minus, check the sign here, plus into minus, that is minus n into n is n square. Okay, again I am explaining this, m into m square, m into n mn. Why we are putting minus sign here, मतलब यहाँ पे m से पहले अगर कुछ भी नहीं रहा तो प्लस रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 5 रखा हूँ. ओके, 5 इफ नथिंग इज देयर प्लस तो रहता है यहाँ पर. अगर यहाँ 5 से पहले कुछ भी नहीं रहा तो डेफिनेटली प्लस रहता. ओके, अगर किसी को मेंशन करना है स्पेशली -5 तो दे विल मेंशन द साइन. अगर किसी को -5 बोलकर मेंशन करना है दे विल डेफिनेटली पुट अ साइन. लेकिन अगर कुछ भी नहीं रहा तो डेफिनेटली उससे पहले साइन होती है प्लस की. ओके, m into m is m square, m into n is mn. Okay, n into m is nm, n into n is n square, that is plus into minus is minus. तो हम यहाँ से साइन ले चुके हैं. ओके, m square as it is. Okay, now mn is also as it is plus. Okay, what we can do is nm we can write it as mn also, because just now I told you 5 into 2 या 2 into 5 both are same ना. Okay, like 3 into 2, 2 into 3, both are same. Why? 5 2s are 10, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 2 3s are 6. ओके, सो मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर सेम आता है तो आप नंबर को यहाँ का यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ का यहाँ भी लिख सकते हो. एग्जाम्पल ए बी, बी ए, बोथ आर सेम. मल्टीप्लीकेशन में दोनों भी सेम होते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पर एन एम की जगह mn भी लिख सकता हूँ. आई कैन राइट इट बिकॉज नो प्रॉब्लम. n into m is also same, m into n is also same, both are same. minus n square. Okay, now minus mn plus mn. Okay, minus mn plus mn, they both will get cancelled. why means like 2 minus 2, यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो मैंने पहले ही बताया प्लस रहेगा. तो ये -2 + 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 2 - 2 कितना होता है? 0 होता है. डेफिनेटली अगर मैं ऐसा लिखूंगा लाइक a माइनस बी, ये कैंसिल नहीं होता. ओके, दिस वोंट बी कैंसिल. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a माइनस ए, ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस कुछ भी नहीं रहा तो प्लस रहता. प्लस a माइनस ए विल गेट कैंसल्ड. ओके, इन द सेम वे माइनस mn एंड प्लस mn विल गेट कैंसल्ड. हमारे पास बचा क्या? m स्क्वायर एंड माइनस n स्क्वायर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करके भी आप यू कैन डू दिस एंड यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे ऑल्सो. कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल इंडिया वर्ड. थैंक यू सो मच.